Welcome to one and all once again to Steven Sir Makes It Easy, when me, Steven Sir, tries my best to make sure that different chapters connected to accounts and finance are explained in such a manner where it is digestible to you. Okay, before I get started with my task for the day, with my objective for the day, with my aim for the day, a very quick reminder that there are different platforms through which you can connect to me. YouTube being one that is on which you are right now, but you can also use Facebook, Instagram and Twitter to get connected to us. Also, the Telegram channel above, which is the most important, because as and when you are a part of that Telegram channel, the PDF of the question and the answers at the end of every chapter will be shared by you, shared by us, so that you can download it and use it for your future reference. Okay, do note that if you intend to purchase the textbook from which this particular question is being solved, or rather every question that is being solved in lectures to come, the purchase link of that is going to be provided in the description below. If you have missed out the previous lecture, because there will always be a rishta, a connection between the previous lecture and this one, it is my request to click on that iCard given above so that you can go and watch the previous lecture. Okay, so that's pretty much it. आज के लिए शुरू करते हैं. So हम लोग कुछ लेक्चर्स से कर क्या रहे हैं? वेल, जो बोर्ड के ऊपर पीछे लिखा गया है, वी हैव बीन डूइंग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने आपको आज तक क्या पढ़ाया है? बैलेंस शीट पहले पढ़ाया है. ओके, यू मे सी बट सर ये तो बैलेंस शीट दिखता नहीं है. यस, बिकॉज ये तुम्हारा ट्रेडिशनल क्लासिकल बैलेंस शीट नहीं है. तो ये कौन सा बैलेंस शीट है? ये मॉडर्न बैलेंस शीट है. मॉडर्न बैलेंस शीट कैसे बनता है? ऐसे बनता है, इसको कहते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट. इनफैक्ट काफ़ी लंबा है, ये ख़त्म नहीं हुआ. नेक्स्ट पेज पे आपको इसका कंटिन्यूएशन दिखेगा. एक काम करता हूँ, ये पूरा बैलेंस शीट एक पेज पे दिखा देता हूँ. ओके, एंड थोड़ी चर्चा करते हैं इसके ऊपर, बिकॉज इन द प्रीवियस लेक्चर्स इवन दो वी हैव सॉल्व्ड balance sheet, we have solved simple balance sheets, and I am hoping and assuming whenever the examination is conducted, or whatever examination is conducted for this particular chapter, simple आएगा. Okay, let me quickly point out. उंगली इसको पहले है sources of funds, the total of which is called as total fund available, which is equal to application of funds. उसका भी टोटल ये मेरे सिर के ऊपर है. टोटल फंड एम्प्लॉयड सेम आना चाहिए. सोर्सेज ऑफ फंड्स में दो लोग है जिनकी जेब से पैसा आता है. ए ओनर्स फंड्स, बी बोरोड फंड्स. नाउ दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू दिस इंफॉर्मेशन which we have already done. You can always see it in your textbooks or it's available here. आज प्लान ये नहीं है, इसे मैं रिमाइंडर कर रहा हूँ कि व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वी हैव डन. एप्लीकेशन के अंदर फिक्स्ड एसेट आता है, इन्वेस्टमेंट आता है और वर्किंग कैपिटल. बाकी पूरा तामझाम एक्सप्लेनेशन हैज बीन कवर्ड अप प्रीवियसली. आई हैव थॉट यू दिस बैलेंस शीट. I have taught you this balance sheet in common size style. What is a common size statement? How do you calculate? I have taught you this balance sheet in comparative style. जब 2 साल आते हैं, then how do you calculate? Today, this is not my plan. Okay. So, what is my plan? My plan is to teach you a income statement. It is also called as a revenue statement. क्या है ये? देख, है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दिस थिंग, इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, क्या क्या है इसके अंदर? देखो, पढ़ के एक बार सुना देता हूँ, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. एक्सप्लेनेशन जो दूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, इनकम स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एंड में इनकम मालूम पड़ता है, इसके लिए बोलते हैं. कभी कभी रेवेन्यू स्टेटमेंट बोलते हैं. क्यों बोलते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट? क्योंकि एंड में रेवेन्यू पता चलेगा, इसके लिए. सिंपल सी बात है यार, ऐसा कोई घबराहट का बात नहीं है. ओके, क्या लिखा है? इनकम. इनकम ढूंढने को शुरू होएगा तो इनकम तो लिखा होगा. सेल्स क्यों पहले लिखा है?
क्वाइट सिंपल रे, छोटी कंपनी, ओके, जो कंपनी छोड़ी, कोई दुकान गली नुक्कड़ में तो है, अगर जाके आप उनसे पूछोगे जो लेट्स से टॉफ़ी बेचते हैं, चॉकलेट बेचते हैं, बड़ा बड़ा कैडबरी नहीं, 2 रुपए का, 3 रुपए का, इफ यू गो एंड आस्क दैट अंकल, चचा आपकी मेन कमाई क्या है, आप क्या कमाते हो, तो वो बोलेगा जो बिक्री होती है हमारी दुकान से, सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अगर चचा को दुकान में कभी गलती से 500 का नोट मिल गया, 2000 का नोट मिल गया, चचा विल नोट से ये मेरा मेन इनकम है, मैं तो हर दिन दुआ करता हूं, प्रार्थना करके आता हूं, प्रेयर करके आता हूं कि कोई कस्टमर मेरे दुकान में आए और 1-2 हजार रुपया भूल के चले जाए। नो, चचा नहीं बोलेगे ऐसा। चचा बोलेगे कभी कभार ऐसा हो जाता है, मेरा मेन इनकम क्या है, सेल्स। चलो इंग्लिश में नहीं बोलेगे तो बिक्री बोलेगे ना, जो वो बेचते हैं। हाँ, लेस सेल्स रिटर्न, कभी कभी हो जाता है सेल्स रिटर्न, तो माइनस करो क्योंकि उतना वापस आ गया, क्या मिलेगा, नेट सेल्स, ओके। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्वेश्चन मार्क, व्हाट डज दिस मीन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है जो बेचा उसका कॉस्ट प्राइस, मीनिंग जो बेचा उसका कॉस्ट प्राइस, ऊपर सेल्स है ना, जो बेचा उसका सेलिंग प्राइस, तो नीचे है कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अगर आप ऊपर लिखो और कॉस्ट प्राइस नीचे, तो क्या आएगा, प्रॉफिट आना चाहिए। हाँ तो बराबर ना, प्रॉफिट आपका इनकम है, प्रॉफिट आपका इनकम है। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस। हाउ डू यू फाइंड कॉस्ट प्राइस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस 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 एड 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 डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। आई विल गिव यू एन आइडिया, डोंट वरी, अभी पढ़ रहा हूं मैं। परचेज क्या है, खर्चा, वेजेस क्या है, खर्चा, कैरेज इनवर्ड क्या है, खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, सब खर्चा ही है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्यों किया, क्योंकि ये परचेज, वेजेस, कैरेज इनवर्ड एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे कम ऑन द डेबिट साइड, बट क्लोजिंग स्टॉक कम्स ऑन द क्रेडिट साइड ना, इसके लिए जो क्रेडिट में आया वो उन्होंने माइनस किया, क्रेडिट में जो खर्चा आया वो उन्होंने माइनस किया। तो आया क्या, वेल यू गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड व्हेन दैट आइटम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेल्स अबव, ऊपर सेल्स है, सेल्स, नीचे क्या है, कॉस्ट, यू गेट व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट। आई कम टू डिटेल्स, डोंट वरी। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, अरे ऑपरेशंस, वो डॉक्टर जो हॉस्पिटल में करता है, नहीं नहीं वो अलग है, वो सर्जिकल प्रक्रिया, शस्त्रक्रिया, सर्जरी, वो अलग है, ओके। यहाँ पे मतलब है बिजनेस ऑपरेशंस, तुम्हारे बिजनेस से जुड़ा हुआ खर्चा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी यू मे से बट सर बिजनेस में बिजनेस का तो खर्चा होगा, और कौन सा खर्चा होगा, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी बिजनेस में नॉन बिजनेस इवेंट भी होता है। अच्छा, व्हाट डज दैट मीन, नॉन बिजनेस इवेंट होता है, एग्जाम्पल, इफ योर फैक्ट्री, योर कंपनी, ओके, जहाँ पे नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है, ओके, मार्केटिंग का खर्चा होता है, रेंट का खर्चा होता है, दीज ऑल नॉर्मल एक्सपेंसेस, कोई भी कंपनी में होते हैं, कोई भी ऑफिस में होता है। बट इफ़ योर बॉस डिसाइड्स कि लेट अस, अपनी कंपनी बहुत बड़ी है, लेट्स ओपन अप अ वैक्सीनेशन सेंटर, कोविड के लिए रिक्वायर्ड है ना, ओके, सो दैट अपने जो एम्प्लॉयज़ है उन लोगों को वैक्सीन हम दे सकते हैं, ओके, कोविड की वैक्सीन, एंड जो आसपास एरिया में रहते हैं वो भी आ सकते हैं। नाउ इफ यू मेक अ वैक्सीनेशन सेंटर, you have to make a lot of arrangements, okay, kurchi, okay, fan, and a provision to keep that vaccine at a cold temperature, okay, maybe internet connection, etc etc etc. Now is this जो तुम्हारा बॉस खर्चा करेगा, जो तुम्हारा कंपनी खर्चा करेगा ऑन दिस
vaccination center because it is in the premises of the factory and company. A business expense? नहीं, हर साल थोड़ी होता है, हर साल नहीं होता है, तो ये बिजनेस के अंदर हुआ है बट बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है. हाँ, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 3 कैटेगरी आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड सेलिंग. ये तीनों कैटेगरी जब आप ऐड करोगे यू विल गेट टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? टू फाइंड प्रॉफिट हमेशा खर्चा माइनस होता है. हाँ, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? बिजनेस का प्रॉफिट. वेरी सिंपल एज दैट. Add non-operating income less non-operating expense. Non-operating का मतलब क्या? Not connected to your business. अच्छा, मतलब अगर कंपनी को या जो ओनर है बिजनेस का उसको लॉटरी लगा 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, ओके, तो वो तो इनकम हो गया. बट इज इट बिजनेस का इनकम? नो. मैनी अ टाइम्स बिजनेस में कुछ पुराने मशीन्स पड़े रहते हैं. लेट्स से इट्स अ हॉस्पिटल. हॉस्पिटल अपने मशीनरी को अपग्रेड करा रही है, तो पुराने सीटी स्कैनर, एमआरआई मशीन, ओके, जहाँ पे एक्सरे निकालते हैं वो सब मशीन वो बेच देती है एंड दे गेट सम मनी, इनकम. कैन द हॉस्पिटल से अरे ये तो हमने सीटी स्कैन मशीन बेचा, एमआरआई मशीन बेचा, हमने ऐसा मशीन बेचा, एम्बुलेंस को बेचा, हमने कमाया. हम लोग हर दिन कमाते हैं. अरे नहीं रे हॉस्पिटल, आपका काम ये नहीं है. आपने में भी 5, 6, 10 सालों में ये बेचा होगा, एक बार बेचा होगा. दिस इज नॉट योर रेगुलर इनकम. रेगुलर इनकम तो पेशेंट से आता है आपको. हाँ, तो ये तुम्हारा नॉर्मल नहीं है, कभी कभार का इनकम. दैट इज कॉल्ड एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम. व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? उल्टा भी हो सकता है. व्हाट डज उल्टा मीन? ओके, कि हम लोगों ने कुछ मशीन खरीदा बट जब उसको बेचा, व्हेन इट वाज सोल्ड, तो लॉस हुआ. इट वाज परचेस्ड इन 1 लाख बट सोल्ड इन 80,000. हाँ, तो तुमको नुकसान हो गया ना 20,000 का. हाँ, हर दिन ये नुकसान होता है? नहीं. वी डोंट सेल एसेट्स एवरी डे, इक्विपमेंट्स एवरी डे, मशीन्स एवरी डे. नहीं, कभी कभार बेच देते हैं हम लोग. सो ये जो नुकसान है ये एवरी डे नहीं होता. पेशेंट्स का ख्याल रखना, पेशेंट्स को खाना खिलाना, पेशेंट्स को मेडिसिन देना, ये खर्चा नॉर्मल है. दे आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. बट इफ यू सेल समथिंग एंड देयर इज अ लॉस ऑन दैट, वो हर दिन होता नहीं है. दैट इज नॉन ऑपरेटिंग. ओके, प्लीज नोट, जो एक्सपेंस है ना दैट इज ऑलवेज लेस, बिकॉज इफ यू वांट टू फाइंड इनकम तो खर्चा तो माइनस करना पड़ेगा. इनकम को प्लस करो और एक्सपेंस को माइनस. देन यू रीच टू अ लेवल कॉल्ड एज एनपीबीटी. वेरी फेमस कंपनी की भाषा में. एनपीबीटी शॉर्ट फॉर्म बहुत चलता है कंपनी में. व्हाट इज दैट? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. बिफोर टैक्स का मतलब क्या? टैक्स को माइनस करना पड़ेगा. हाँ, तो लेस टैक्स. किसको टैक्स दिया? अरे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा ना. नहीं सर, मेरे को पसंद नहीं है टैक्स देना. ऐसा नहीं है रे बाबा. हमारी जो कंट्री है ना, भारत देश, ओके, वो एक डेमोक्रेसी है. मतलब सरकार हमारे देश को चलाती है बट सरकार को पैसा लगता है. वो पैसा टैक्स के रूप में हमको सरकार को देना पड़ता है. एंड कंपनी लोग कभी मना नहीं कर सकते. दे हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. हाँ, तो टैक्स माइनस होता है, फिर आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्लीज नोट, यू हैड फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट, थोड़ा नीचे यू हैड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, थोड़ा नीचे यू हैड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, थोड़ा नीचे यू हैड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. यू हैड मल्टीपल प्रॉफिट्स. सर, ग्रॉस प्रॉफिट में प्रॉफिट लिखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्रॉफिट लिखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्रॉफिट लिखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्रॉफिट लिखा है.
सर कितना प्रॉफिट ढूंढते ये लोग? ढूंढना पड़ता है। क्यों? बिकॉज देर आर many डिफरेंट parties that are connected to a company, that are interested in a company. दूर से उन्होंने दूरबीन में ना वो कंपनी को देख रहे, कंपनी के परफॉर्मेंस को देख रहे, ये कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है, उनको जवाब दे सके, इसके लिए इसके अंदर इतने प्रॉफिट्स ढूंढे जाते हैं। एग्जाम्पल ओके, इफ यू वांट टू व्हाट यू कॉल पे द गवर्नमेंट टैक्स, देना है ना गवर्नमेंट को टैक्स, बराबर? तो गवर्नमेंट कौन सा प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है? बिकॉज टैक्स इज पेड ऑन प्रॉफिट। हाँ, सो इफ यू नोटिस NPBT, प्लीज नोटिस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, द गवर्नमेंट विल आस्क यू, कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, टेल अस व्हाट इज योर NPBT. Whatever is your NPBT, 1 crore, 2 crore, 500 crore, give us 30% tax. And if you tell the government, but government, sarkar, our gross profit is this, our operating profit is this, the government will say, अरे what are you telling us? We are not, हमको interest नहीं है उसमें, हमको NPBT बताओ before tax, हमको उसमें से tax चाहिए. The government is not interested in other profits. If you go to a bank to take a loan, तो बैंक वाला कौन सा प्रॉफिट पूछेगा? पूछेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों बैंक वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछेगा? क्योंकि अगर आप बैंक वाले को बोलो कि सर हमारा जो NPBT है ना, हमने गवर्नमेंट को बोला सर 5 करोड़ NPBT, तो सर हम आपको भी वही बोलते हैं, मैनेजर, बैंक मैनेजर, हमारा NPBT 5 करोड़ है. तो बैंक मैनेजर क्या बोलेगा? सर हमको NPBT में इंटरेस्ट नहीं है. क्योंकि बैंक मैनेजर ओके पढ़े लिखे लोग हैं, दे विल से सर देखो यहाँ पे जो आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखा है ना, लॉटरी इनकम कितना लिखा है सर? 4 करोड़. आई एम गिविंग एन एग्जांपल. 4 करोड़, व्हाट डज दैट मीन? ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, टू अराइव एट दैट, वहां तक पहुंचते यू रोड 4 करोड़ लॉटरी इनकम. डू यू थिंक लॉटरी हर दिन लगती है? नो. कभी कभार कंपनी में लॉटरी लगेगा, ओनर का लॉटरी लगेगा. दैट इज नॉट एन एवरीडे इनकम. सो व्हाट डज द बैंक से? वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. वो तुक्का इनकम है, थुक्का नहीं, तुक्का. ओके, सो आई रिपीट, कभी है कभी नहीं है, बरसों तक नहीं है. तो बैंक वाला बोलता है नहीं सर, यू टेल मी बिजनेस का प्रॉफिट, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. बिजनेस में सर आप कितना कमाए, बिजनेस करके आपने कितना कमाया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट. आई रिपीट, डिफरेंट पीपल आर इंटरेस्टेड. शेयर होल्डर्स, जनता जिसने कंपनी में पैसा डाला है, कैपिटल, दे आर इंटरेस्टेड इन व्हाट? ये जो लास्ट है ना, NPAT. Okay, if you tell the shareholders, but our gross profit is this much, our operating profit is this much, our NPBT is this much, उन्होंने बोलेगा अरे क्या पका रहा है. ओके, क्यों? ग्रॉस प्रॉफिट में से खर्चा जाने वाला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से खर्चा जाने वाला है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स जाने वाला है. अरे हमको क्यों बोल रहे हो? हमको बोलो NPAT, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिकॉज वी विल गेट डिविडेंड फ्रॉम दैट. बाकी तो तुम दुनिया को भरता रहेगा. Different people, different parties are interested in different profits. So the statement is made in such a manner that जो जिस प्रॉफिट में इंटरेस्टेड है वो पढ़ सकता है. सब आंसर यहां पे है. ओके, दिस करोगे तो आप आ जाओगे इनकम पे, विच इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. नाउ जस्ट टू एक्सप्लेन दिस टू यू पार्ट बाय पार्ट, मैंने तुमको एक जनरल आइडिया दिया, बट पार्ट बाय पार्ट. होल्ड ऑन, ऊपर कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, देख लो. ट्रेडिंग अकाउंट सुना है ना? नहीं सुना है तो पंगा हो जाएगा. नाउ व्हाट कम्स इन अ ट्रेडिंग अकाउंट? ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेस आता है, वेजेस आता है, सेल्स आता है, कैरियज इनवर्ड आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है.
तो माय डियर ऐसा है कि सेल से लेके ग्रॉस प्रॉफिट का जो हिस्सा है इज ट्रेडिंग अकाउंट. Everybody is trading account. But sir, that looks different. It will look different. This is classical, above me. Left, right. That is modern. Up, down. This above me is daya baya. Debit, credit. That is up, down, plus, minus. But इसका आंसर is gross profit ना trading का. हाँ, तो उसका भी तो आंसर gross profit है. So I repeat, in an income statement, the first part is trading account. The second part is what? The second part is profit and loss account. Example, देखो ना, ऊपर वापस से मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ आपके लिए. क्या क्या आता है प्रॉफिट एंड लॉस में? अरे क्या नहीं आता? So many items come in profit and loss. लंबा चौड़ा इंफॉर्मेशन रहता है. आई एम गिविंग सम एग्जाम्पल्स. ऑफिस का रेंट आता है, बैड डेप्ट आता है, एडवर्टाइजमेंट कभी कभी आ जाता है, लॉस बाय फायर, अगर थोड़ा बैड लक रहा तो लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय रेन, लॉस बाय फ्लडिंग होता है ना. डिस्काउंट रिसीव्ड आता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर बाइक, मतलब यू सोल्ड समथिंग और आपको प्रॉफिट हुआ. Now please remember here, operating expense से लेकर last net profit after tax, which we call as NPAT, is nothing but profit and loss account. Example, I repeat, it looks very different. Obvious है ना, it will look different. क्यों it will look different? Because what you have learned is horizontal. And what you are going to be converting, not today, in the next lecture, is going to be vertical. But when you do vertical, what I am trying to tell you, देखो घबराना मत, you are doing nothing but turning, कहते हैं ना, turning the table, okay? Turning and converting the normal trading profit and loss account into a vertical format. Example, what is office rent? That is administration expense. What does that mean? Office का खर्चा. Then what is bad debt? It is a finance expense. What's a finance expense? अरे पैसे का नुकसान. फाइनेंस मतलब पैसा ना. बैड डेट क्या है? पैसे का नुकसान. अच्छा, तो ऑफिस रेंट को आई शुड राइट इन एडमिनिस्ट्रेशन, बैड डेट को आई शुड राइट इन फाइनेंस. व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट? सेलिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग, सेलिंग. बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है ना. ओ, तो ये कैटेगरी है. हाँ, जो तू P&L अकाउंट में करता है ये कैटेगरी है. ये क्या है? लॉस बाय फायर. आग, फायर. डज इट हैपन? संडे, मंडे. सर मेरे को सर्दी लग रहा था, मैंने आग लगाया ऑफिस में. ऐसा थोड़ी होता है यार. ओके, आग लगता नहीं है. ओके, और अगर कभी होगा तो बहुत रेयरली होता है, वेरी रेयरली. हाँ, तो ये हर दिन का नहीं है एक्सपेंस. इसको कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. व्हाट इज डिस्काउंट रिसीव? इसको कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम. अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं है, ये टेक्स्ट बुक में आपको थोड़ा शॉर्टकट में दिया है. बट डिस्काउंट रिसीव्ड इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग इनकम. Don't worry, at 12th standard level they normally don't teach operating income. Actually this much also is little difficult that they will cover up. What is profit on sale of motorbike? Do you sell your motorbike every day? मतलब the one who owns a motorbike. ऐसा नहीं है, खरीदेगा वो, चलाएगा वो, चलता ही जाए, and maybe after 8-10 years he will sell. So it's not an everyday activity. So this profit is not an everyday profit. So it is called as non-operating income. This is a P&L account, but whatever is written in this P&L account above, it is distributed into operating and non-operating. Debit में आता है operating expense, non-operating expense.
क्रेडिट में आता है ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये दोनों को अगर जोड़ दे तो आपको क्या मिलेगा? वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। द टॉप पार्ट till gross profit is this top part. What is that? Trading account. The bottom part till net profit after tax is this bottom part. And what is that? Profit and loss account. I repeat, जब मैंने आपको बैलेंस शीट बताया, न्यू एसेट न्यू लाइबिलिटीज नहीं थे, नाम नया था। शेयर होल्डर्स फंड्स, ओनर्स फंड्स, बोरोड फंड्स, फिक्स्ड एसेट, वर्किंग कैपिटल, नाम अलग था, काम वही था। Similarly, next time onwards, whenever we meet, for what? For analysis, the first thing what I will do is I will teach you from horizontal trading account, P&L account, how do you make vertical. तो पहले तो एक लेक्चर वो समझ लेगी, then after that in income statement you have to learn common size. आप बोलोगे सर किया ना पहले कॉमन साइज, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। यस माय डियर, पर वो तो बैलेंस शीट में किया, ये भी तो एनालिसिस है, ये भी एक स्टेटमेंट है, इसका भी सीखना है। तो आई रिपीट, वो बैलेंस शीट था, अलग था, ये इनकम स्टेटमेंट है, ये अलग होगा। इसमें भी यू विल डू कॉमन साइज एंड यू विल डू कंपैरेटिव। सो आई रिपीट द सेम, दैट इज द रीजन अगर मैंने नहीं बोला कि कॉमन साइज एंड नहीं हुआ, बैलेंस शीट मैंने पहले पढ़ा दिया, नाउ आई हैव टू डू इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव एंड नहीं हुआ, बैलेंस शीट मैंने पहले करा दिया, नाउ आई हैव टू डू इनकम स्टेटमेंट। सो आई होप it is understood by you that the vertical income statement, it is बोलने के लिए vertical income statement, vertical revenue statement, actually it is nothing but a combination of trading account and profit and loss account. Whenever these lectures continue, definitely in the next lecture I am going to be teaching you the first practical problem. Okay, I hope the explanation is completely understood by you. Whenever practical problems are done, whether it is illustration or practice problems, the PDF of that particular question and answer will usually be available in the description below, as well as on the Telegram channel. When the chapter comes to an end, the entire chapter's PDF will also be shared so that you can download it and use it for your future reference. I hope that is understood by you. If the explanation was also understood by you, अगर मैंने कोशिश किया ये explanation आपको simple बनाने के लिए, तो lecture को definitely like कर दीजिए, share the lecture videos with your friends so that people, other students also benefit from these lectures which are put up on the channel here. And also अगर कोई doubt होगा, which is possible, definitely you're a student, you will be having doubts, you can always in the comment box leave that particular doubt. Okay, we'll do our best at the earliest to provide you an answer either in the comment box or in upcoming lectures, because your doubt may not necessarily only be your doubt, it can be doubt of multiple students, so bhala sabka ho jayega. So till the time we meet again, this is Steven sir, this is a goodbye from me. अपना ख्याल रखना, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, your family members, अपने प्रियजनों का, सबका ख्याल रखना. I will meet you very very soon with a continuation of this lecture in which we will actually be solving a vertical revenue statement. Till then, good day to all of you. God bless. Bye.